Hi Saurabh, hi Jaya. हाँ जी. So, in the last class, we saw the six rulers of Mughal dynasty. Okay. So, we discussed from 1526 to 1707. The Mughal Empire was very stable, and it had six prominent rulers. Okay, but from 1707, the conditions will change. Uh, there will be outbreak of independent rulers in the states of Bengal, Hyderabad province, and even in Awadh. Okay. So why is this happening? Like why this integration of the union is taking place or decentralization is taking place? What is the cause for this? So the rulers weren't that efficient. The rulers weren't that efficient, and even the system was becoming corrupt over the time. And there were many reasons for Mughal Empire to corrode. Okay. So today we will focus on the later 11 rulers. Actually, if we see from 1707 to 1857, the time period is just about how much? 150 years. But Mughal Empire will see 11 rulers. And that too, the Mughal rulers are having very, like, the empire, even for some rulers, the empire contains only Delhi or parts of Delhi. Okay, so the condition is very bad. Okay, so let's start. Okay, am I audible? Hi Shubham, I think today I have used this Bluetooth headset for the first time. So is the voice better than every day, or it is like somehow lower or somehow higher? Like, what is the feedback, Shubham? Okay, it's better. Okay, then it's okay. Then I will continue the coming classes in the headset. Okay, so let's start. So I will open the whiteboard. So we saw in 1526 Babur arrived. Okay, in 1526 Babur arrived, and then the second ruler from 1530 Humayun, and then again after Battle of Sarhind, he is re-establishing his empire in 1555. Okay, and then in 1556 Akbar beats Hemu. And who is Hemu? Hemu is Hemchandra, who is also the 14th Vikramaditya of India, and he is also the last Vikramaditya. And the most famous Vikramaditya is Chandragupta II, who is famous for destroying the Shaka dynasty in India. Okay, and again, it is literature के लिए this is the golden phase. Okay, for literature it is the golden phase. Okay, and then we are having in 1605. And this is for painting. So Jahangir's rule is known for painting. Okay, and for 1628 we had Shah Jahan. Okay. So for this architecture, okay, golden phase for architecture. Okay, then 1658 to 1707 Aurangzeb.
and his rule is basically famous for Deccan conquests, basically Bijapur and Golconda. Okay, so we saw yesterday that the Mughal Empire had 19 subas. Mughal Empire has 19 subas, and Aurangzeb added these two subas, Golconda and Bijapur, and now it was 21 subas. Okay, so he added Bijapur in 1686 and Golconda in 1687. Okay, now let's come to the topic for today. So yesterday we saw that Aurangzeb had five sons. Oh, sorry. So औरंगजेब के 5 बेटे हैं. द फर्स्ट वन इज अकबर. ठीक है, और इवन अकबर 2 भी लोग बोलते हैं. सो ही डज ये जाना जाता है रिवोल्ट करता है एंड रिवोल्ट करके ही खत्म हो जाता है. सेकंड वाला मर जाता है इन मतलब कम एज में ही मर जाता है, सो नॉट नोन. थर्ड वन इज मुअज्जम एंड द फोर्थ सन इज आजम एंड द फिफ्थ सन इज कम्बख्श. ठीक है. सो अब क्या हो रहा है, जो बैटल 1707 में जब औरंगजेब मरता है ना, तो बैटल ऑफ जोजऊ होता है. ठीक है, बैटल ऑफ जोजऊ होता है एंड मुअज्जम किल्ड आजम. ठीक है, मुअज्जम ने आजम को मार दिया. एंड फिर क्या होता है, मुअज्जम फिर कम्बख्श को मार देता है. ठीक है, तो ये कोई बैटल क्यों नहीं मारता, ऐसे ही मार देता है, मतलब उतना फेमस नहीं. आजम को मारना वॉज मोर डिफिकल्ट, इसके लिए बैटल लड़ना पड़ा मुअज्जम को. और फिर यही मुअज्जम आगे जाकर बन जाता है बहादुर शाह 1. ठीक है, इसको 2 टाइटल मिलता है. एक मिलता है बहादुर शाह 1 का टाइटल, बहादुर शाह 1 का टाइटल मिलता है, और एक मिलता है शाह आलम 1 का टाइटल. ठीक है, ये अपने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं करता है जिसको कि हम लोगों को मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो. बस इसका जो ड्यूरेशन रहता है, इसका ड्यूरेशन रहता है 1707 से लेकर 1712 तक. फिर आते हैं हमारे सीन में एक जुल्फिकर खान नाम का बहुत ही एबल वजीर रहता है. ठीक है, एबल वजीर है जुल्फिकर खान. एंड जुल्फिकर खान के सपोर्ट से बनता है जहंदर शाह सेकेंड रूलर. ठीक है, जुल्फिकर खान के सपोर्ट से बनता है ये दूसरा रूलर. ठीक है. अच्छा, एक बंदा बहादुर के बारे में ये मतलब इसके बारे में एक और बात, ये जो बहादुर शाह 1 है ना, इसको पता है कौन मारता है? इसे मारता है हमारा बंदा बहादुर. यू नो हु इज बंदा बहादुर, राइट? बंदा बहादुर जो है जो 10th गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह. गुरु गोबिंद सिंह के बाद गुरु गोबिंद सिंह मरते वक्त बोलते हैं कि लाइक ही विल बी द लास्ट किंग, अब नो मोर गुरुज, लेकिन बंदा बहादुर विल कंटिन्यू द फाइट अगेंस्ट मुगल्स. ओके, तो बंदा बहादुर उनकी बातों को मानता हुआ बंदा बहादुर क्या करता है, बहादुर शाह को खत्म कर देगा, बहादुर शाह को किल कर देगा. ठीक है. अच्छा, और एक दो और नाम चलता है. ये जो बहादुर शाह 1 है ना, ही इज ऑल्सो नोन एज शाह बेखबर. लाइक ये अपने रॉयल लाइफ में इतना ही बिजी रहता है ना, इसका जो लोग हैं दिल्ली के, वो एक नाम रख देते हैं शाह बेखबर. ठीक है, शाह बेखबर. ठीक है, तो ये सब बातें हैं. ठीक है. उसके बाद 1712 में बंदा बहादुर जब मार देता है, तो जो जुल्फिकर खान है, बहुत ही एबल वजीर है, वो जहंदर शाह को अगला रूलर बनाता है 1712 में. अब जो जहंदर शाह है, ये थोड़ा सा लवर टाइप का आशिक जैसा आदमी है. इसको एक पसंद है एक लाल कुंवर नाम की लेडी है. कुछ लोग बोलते हैं मतलब कि एक शी वाज मतलब बहुत ही नोबल लेडी नहीं है. ठीक है. उसके बाद इसका जो नाम क्या क्या पड़ता है, इसका नाम पड़ता है एक मतलब इसके जो अजीब अजीब नाम है, मतलब इफ यू सी हिंदी बुक्स
मैंने एक हिंदी बुक में देखा था, उसका नाम है लंपट मूर्ख। इवन इवन आर.एस. शर्मा में दे दिया ऐसा, लंपट मूर्ख, ये सब मतलब बेसिकली समझ रहे हो आप। मतलब ये इतना ज्यादा, इसको भी कोई मतलब नहीं है राजपाट से, मतलब इसको भी कोई एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है, अपने लाइफ में बिजी है। बेसिकली जुल्फिकर खान रूल कर रहा है, ठीक है। उसके टाइम अब क्या है ना, जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह है, ये आमेर मेवाड़ मेवाड़ वाले एरिया में। और जो जय सिंह है जयपुर वाले, इनको बहुत रिस्पेक्ट देता है। जय सिंह को देता है सवाई का टाइटल, और अजीत सिंह को देता है महाराजा का टाइटल, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है ना कि दो मिनिस्टर्स हैं, मतलब उसी कोर्ट में, जुल्फिकर खान के ही कोर्ट में, मतलब जुल्फिकर खान तो वजीर है और जहादर शाह जो है रूलर है। तो दो कोर्ट मेंबर्स हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है इतना ज्यादा, इतना ज्यादा जो चल रहा है जुल्फिकर खान का। तो ये दोनों कौन है, ये दोनों हैं सैयद ब्रदर्स। इन्हें कहा जाता है किंग मेकर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, किंग मेकर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो जहंदर शाह को मारते हैं, जहंदर शाह को मारते हैं, और फिर फारूक शेर को ये लोग रूलर बनाते हैं, ठीक है। फारूक शेर को ये लोग रूलर बनाते हैं 1713 से 1719 तक, ठीक है। अब जो फारूक, और फिर फारूक शेर जब रूलर बनता है ना, तो ये अपना वजीर किसको बनाएगा, वजीर और मीर बख्शी किसको बनाएगा, ऑब्वियसली यही दोनों भाई को बनाएगा, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है, इसको गद्दी में बैठाया है। तो वजीर बना दिया अब्दुल्ला खान को, जो सैयद ब्रदर्स में पहला एक बड़ा भाई अब्दुल्ला, और जो हुसैन है उसे बना दिया मीर बख्शी, ठीक है। तो अब अब्दुल्ला और हुसैन दोनों का प्लेसमेंट हो गया है, अब मतलब एकदम हेड ऑफिशियल्स बन गए हैं वो लोग, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, तो जो 1716 में एक इंपॉर्टेंट चीज होगा, 1716 में बंदा बहादुर को फारूक शेर मार देगा, बंदा बहादुर को मार दिया जाएगा, ठीक है। बंदा बहादुर को एलिमिनेट कर दिया गया। देन 1717 में फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है कि फारूक शेर को ना, फारूक शेर को एक घाव हो जाता है, ठीक है। फारूक शेर को एक घाव हो जाता है, एंड वो ठीक नहीं हो रहा है। तो एक अंग्रेज है विलियम हैमिल्टन। तो जो विलियम हैमिल्टन है ना, ही इज अ डॉक्टर। वो क्या करता है ना, पेट्रोलियम जेली, आप एकदम समझ जाओ वैसलीन, ठीक है। पेट्रोलियम जेली प्रोडक्ट आके उसके घाव पे लगा देता है, उसका घाव हो जाता है ठीक, उसका घाव ठीक हो जाता है। और वो इतना खुश हो गया है फारूक शेर कि ही गेव द गोल्डन ऑर्डिनेंस, गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया ब्रिटिशर को, और मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया है टू ट्रेड इन, मतलब बंगाल में अब क्या हो गया, बंगाल में टैक्स फ्री हो गया है ट्रेड, टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं अब ये लोग, अंग्रेज लोग, ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है मतलब कैसे कैसे चीजें बन रही है। नाम बस याद क्या रखना है, विलियम हैमिल्टन नाम याद रखना है। 1717 गोल्डन ऑर्डिनेंस किसने दिया, तो फारूक शेर ने दे रहा है, ठीक है, फारूक शेर दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी बीच क्या हो रहा है, फारूक शेर तो बेचारा मतलब एकदम जो सैयद ब्रदर्स कह रहे हैं वही उसी पे चल रहा है। तो एक बहुत ही एबल रूलर हो रहा है आपका, एक है मुर्शीद कुली खान, ठीक है। ये बंगाल वाले एरिया में बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो ये भी उससे खफा चल रहा है। और एक और रूलर है सादत अली खान, ये पता है अवध वाले एरिया में है, अवध वाले एरिया में ये कायम है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आगे चलकर ना यही पहला नवाब बनेगा, बंगाल का पहला नवाब यही बनेगा, और ये अवध का पहला नवाब बनेगा आगे चलकर, ठीक है। तो अभी ये नाराज चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि जो सैयद ब्रदर्स हैं, अब क्या हो रहा है कि जो फारूक शेर है उसको समझ में आ रहा है कि सैयद ब्रदर्स जो है दे आर नॉट वेरी गुड, मतलब वो रहेंगे ना तो ये फारूक शेर को कुछ एक्सरसाइज नहीं करने देंगे पावर।
अब सैयद ब्रदर्स क्या कर रहे हैं? सैयद ब्रदर्स और फारूक में झगड़ा चल रहा है। तो सैयद ब्रदर्स चला गया पेशवा के पास, बालाजी विश्वनाथ के पास। बालाजी विश्वनाथ पता है कौन है ना? बालाजी विश्वनाथ इज द फर्स्ट पेशवा। बालाजी विश्वनाथ इज फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठास। सैयद ब्रदर्स चला गया और ये लोग पता है क्या क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ दिल्ली हुआ। ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ट्रीटी ऑफ दिल्ली हो जाता है। एंड इसमें क्या कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ विल हेल्प टू किल फारूक शेर। मतलब ये क्या करेगा? ये सैयद ब्रदर्स को हेल्प करेगा और फारूक शेर को एलिमिनेट करेगा। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ करेगा ये। और जो मुगल एम्पायर है वो क्या करेगा कि मतलब मुगल एम्पायर डिथ्रोन कर देगा। मतलब मुगल एम्पायर को डिथ्रोन करके मराठास विल टेक ओवर। और सैयद ब्रदर्स कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इसमें, मतलब सैयद ब्रदर्स विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है, तो ये दो ट्रीटी हो रहा है, साइलेंटली हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है? तो फारूक शेर को मार दिया जा रहा है 1719 में। ठीक है, उसके बाद जो सैयद ब्रदर्स हैं वो लोग एक रूलर को लाएगा जिसका नाम है रफी उद्दीन या फिर रफी उद दरजात। ठीक है, रफी उद दरजात। तो अगर आपको सीरियली याद रखना है तो देखिए क्या है ये। तो ये काइंड ऑफ चौथा रूलर है। ठीक है, चौथा रूलर है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? बहादुर शाह वन देखा, फिर हमने देखा था थोड़ा सा इसका देखा था जहादर शाह का देखा, फिर जहादर शाह के बाद फारूक शेर देखा, और चौथा है रफीउद्दीन दरजात। इसी का नाम है शाहजहां टू। ठीक है, शाहजहां टू। ठीक है, तो ये बेचारा लेकिन ज्यादा दिन जी नहीं पाता है एंड फिर टीबी से मर जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आया हुआ है, बीपीएससी में आया क्वेश्चन है कि शाहजहां टू की मौत कैसे? तो टीबी से हो जाती है, अचानक हो जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादा दिन तक रह नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद एक प्रोमिनेंट रूलर थोड़ा आएगा, मतलब जो थोड़ा सा बेहतर है बाकी सबसे, वो है मोहम्मद शाह। इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा लंबा है, 1719 से 1748 तक रहेगा ये। ठीक है, 1719 1748 तक रहेगा ये। और ये सबसे पहला काम बताओ क्या करेगा? अब प्रोमिनेंट है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? एसबी को एलिमिनेट करेगा, जो सैयद ब्रदर्स हैं उसको एलिमिनेट करेगा। और किसके हेल्प से? तो विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, एक पार्सल आया है। आई विल बी बैक इन जस्ट, अच्छा मैं बस 1 मिनट के लिए क्लास को होल्ड पे रखता हूँ। हाँ, यस। सो ये निजाम उल मुल्क जो है वो कौन है? ये आगे चलकर हैदराबाद का पहला निजाम बनेगा। ठीक है, फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो पहला काम ये क्या कर रहा है? एसबी को किल कर रहा है और निजामुल मुल्क को के हेल्प से करे तो ऑब्वियसली निजामुल मुल्क का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसको बेसिकली रिकॉग्नाइज भी करता है निजामुल मुल्क को। ये रिकॉग्नाइज करता है, एक सूबा दे देता है बेसिकली हैदराबाद का, और फिर इसको रिकॉग्नाइज भी करता है एज अ रूलर ऑफ हैदराबाद। ठीक है, फर्स्ट निजाम की तरह इसको रिकॉग्नाइज भी करता है। ठीक है, पैरेलली क्या हो रहा है?
1719 में एक और डेवलपमेंट हो रहा है, 1720 में एक और डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें बालाजी विश्वनाथ जो है ना, वो बन रहा है पेशवा एट 19 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब बालाजी विश्वनाथ टू, बेसिकली ये बाजीराव है। ठीक है, बाजीराव वन जो फेमस है ना, फेमस बालाजी बाजीराव, बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव। तो ये 19 साल के एज में ना ये बन जाता है पेशवा। ठीक है, बाजीराव वन। ठीक है, और ये आगे चलकर करीब 40 वॉर्स लड़ता है और सब जीतता है। ठीक है, बेसिकली मराठा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर यही रहता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेशवा यही रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग इमेजिन करते हैं 1720 में इंडिया का क्या सिचुएशन है अभी। ठीक है, तो हिंदुस्तान का जो बादशाह है, अच्छा रुकिए नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ। मतलब दिल्ली में जो बादशाह है वो कौन है? वो है मोहम्मद शाह। इसका एक और नाम फेमस है, रंगीला। ठीक है, उसके बाद बंगाल में कौन है? तो बंगाल में अब प्रोमिनेंट हो गया है आपका मुर्शीद कुली खान। अवध में कौन है? अवध में सादत अली खान। मराठा में कौन है? बाजीराव वन। और आपका हैदराबाद में कौन है? निजामुल मुल्क। ठीक है, ठीक है। तभी क्या हो रहा है ना अभी, मतलब ये सिचुएशन है 1920 का, और ये सिचुएशन कभी मतलब काफी टाइम तक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 1739 में फिर एक और मेजर चीज हो रहा है। 1739 में क्या हो रहा है, नादिर शाह नाम का जो कि दुर्रानी डायनेस्टी का है, ईरान का है। ये जो नादिर शाह है दुर्रानी डायनेस्टी का, ईरान का, ईरान से आता है और मुगल आर्मी को हरा देता है, बहुत बुरी तरीके से हरा, दिल्ली बहुत लूटता है। ठीक है, तो पहले क्या करता है, पहले मोहम्मद शाह जो है ना, ये देता है इसको 5 लाख रुपए और बोलता है भाई मैं तू लौट जाऊं। ठीक है, लेकिन नादिर शाह पहले तो मान लेता है, लेकिन फिर इसको पता चलता है नहीं, दिल्ली में तो बहुत पैसा है। और कौन बताता है इसको ये बात बताता है इसको सादत अली खान, जो अवध का जो नवाब है, वो बता रहा है कि नहीं नहीं, दिल्ली के पास तो बहुत पैसा है। तो फिर नादिर शाह 50 दिन तक लूटता है। कोई कोई बुक्स में 49 डेज लिखा हुआ है, कोई कोई बुक्स में 50 डेज लिखा हुआ है। ठीक है, और पता है कितना लूटता है? अराउंड 70 करोड़। उस टाइम पे 1739 पे 70 करोड़ लूट रहा है, आप समझ सकते हो। ठीक है, इसी 70 करोड़ के साथ कोहिनूर भी लूट लेता है। ठीक है, सो नादिर शाह आ रहा है, 70 करोड़ तो लूट ही रहा है, कोहिनूर भी ले रहा है, वो फिर फाइनली वापस ला जा रहा है। लेकिन उसके बाद पता है जो 1739 से जो 47 का पीरियड है ना, उसमें एक्चुअली मोहम्मद शाह ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, एंड द मुगल एम्पायर वाज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, लेकिन डेस्टिनी में शायद मुगल एम्पायर खत्म ही होना लिखा था, तो इसलिए फिर क्या होता है, फाइनली मतलब ये चला जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। एंड फिर आ जाता है बैक, मतलब अहमद शाह अगला रूलर बनता है जिसका बेटा है। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है ना कि 1747 में एक और चीज हो रही है, आ, वो मर जा रहा है, वो जो नादिर शाह है वो मर जा रहा है। तो ईरान में अब कौन आ गया है, ईरान में इसका बेटा आ गया है अहमद शाह अब्दली। अहमद शाह, अहमद शाह अब्दली। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ये जो मोहम्मद शाह है ना, ही वॉज द लास्ट रूलर टू इम्पोज जजिया। इसके बाद जजिया खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब तो मराठास हुआ द प्रोमिनेंट फोर्स, तो मराठा के सामने तो आप जजिया नहीं दे सकते हो ना। तो ये बात है। तो जो मोहम्मद शाह है उसका बेटा का नाम भी अहमद शाह है, जिससे कंफ्यूज मत होना आप।
ये अहमद शाह अब्दली है और ये अहमद शाह है, ठीक है। और ये रहता है कब से पता है, 48 से लेकर 54 तक, 1748 से लेकर 1754 तक, ठीक है। ये बेटा है मोहम्मद शाह का। तो फिर बैटल होता है अहमद शाह बैटल, ठीक है। अहमद शाह बैटल होता है, ये अहमद शाह वर्सेस ये अहमद शाह अब्दली। और इसमें क्या होता है कि मुगल्स वन, अहमद शाह जीत जाता है, बहुत बड़ी जीत है इससे, तो ये दुर्रानी डायनेस्टी हार जाता है। तो अब क्या हो रहा है, मुगल एम्पायर इज काइंड ऑफ बैक ऑन ट्रैक। उतना भी नहीं, मतलब तब भी थोड़ा बहुत। उसके बाद ये और कुछ काम नहीं करता ये अपने लाइफ टाइम में। फिर एक आ जाता है आलमगीर टू, आलमगीर टू आ जाता है। ये आपका 54 से लेकर 59 तक रहता है, ठीक है। 54 से 59 रहता है। और इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या, 54 से 59 आ रहा है, समझ रहे हो आप। 57 में क्या होता है, प्लासी हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी। तो अब क्लाइव है एक तरफ क्लाइव है और एक तरफ सिराज उद दौला है। तो हम लोग वो करेंगे, बंगाल का जो नवाब जो थे उनके बारे में भी करेंगे, लाइन से एकदम करेंगे, ठीक है। सिराज उद दौला है। तो अब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली क्लाइव जीत जाता है ये वाला बैटल एंड सिराज उद दौला हार जाता है। और इसके बाद काइंड ऑफ थोड़ा बहुत, मतलब बंगाल वाले रीजन में ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश को बहुत सारे ग्रांट्स मिलने लगते हैं, मतलब ब्रिटिश जो चाहता है वो होता है बंगाल वाले एरिया में। बट बैटल ऑफ बक्सर वॉज द की, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो आठवां है वो है शाह आलम टू, ठीक है। शाह आलम टू ये कब से कब है पता है, 59 से 1806 तक है, मतलब आप समझ जाओ ये बहुत ही लंबा है। जो मोहम्मद शाह है और शाह आलम टू है ये बहुत बहुत टाइम के लिए है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट बैटल होता है 14 जनवरी 1761 को होता है एंड वो होता है पानीपत में। पानीपत में होता है। ये कौन सा बैटल है पानीपत का, ऑब्वियसली थर्ड बैटल है। 1 और 2 तो 1 तो बाबर ने लड़ा था 1526 में और अप्रैल में, और फिर अकबर लड़ता है सेकंड बैटल, तो पानीपत में थर्ड बैटल होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें फिर से वो अहमद शाह अब्दली जो है, अहमद शाह अब्दली दुर्रानी डायनेस्टी वाला, ईरान वाला, ये आता है वापस। और ये भिड़ता है किसके साथ, ये भिड़ जाता है मराठास के साथ, ठीक है। तो मराठास लोग को, जो भारतपुर का जो रूलर है सूरजमल, भारतपुर का जो रूलर है सूरजमल, वो बोलता है सपोर्ट करेंगे। और अवध में एक जो रूलर है शुजा उद्दौला, ठीक है, सादत अली खान का ही डिसेंडेंट है ये, अवध का रूलर, ये भी बोलता है कि हेल्प करेंगे, ठीक है। मराठा भी अपने फुल फोर्स से नहीं जाता है, मराठा बहुत लाइट लेता है अहमद शाह अब्दली। मतलब ये तो भाई अहमद शाह अब्दली तो अहमद शाह से हारा हुआ है, तो हम लोग तो हरा ही देंगे, मराठा लोग सोचता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और ये सब जो होता है, मराठा को पता है कौन रिप्रेजेंट करता है इस वॉर में, सदाशिव राव, सदाशिव राव रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्या होता है, ये लोग नहीं आता है ना, भरतपुर से सूरजमल आता है ना, अवध से शुजाउद्दौला आता है, और मराठास हार जाता है, अहमद शाह अब्दली जीत जाता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा, मतलब मराठा जो सपना सजो के रखा था कि पूरे भारत पे तो राज करना है, उसके लिए बहुत बड़ा ये क्या बोलूं, मतलब बहुत बड़ा सेटबैक था मराठास के लिए इन 1761, ठीक है। 1764 में एक बहुत ही फेमस बैटल होता है, बेसिकली दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स दैन बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बक्सर में हो रहा है जी। इसके बाद क्या हो रहा है, हेक्टर मुनरो ब्रिटिश के ट्रूप्स को लीड कर रहे हैं, हेक्टर मुनरो। और ये किसके अगेंस्ट है भाई, तो ये हैं ज्वाइंट फोर्सेस, शाह आलम टू, शाह आलम टू मतलब समझ रहे हो ना आप, मुगल 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 फोर्सेस प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो कि इसमें रहा, ये मीर कासिम। बेसिकली पता है ये स्टोरी क्या है, मीर कासिम ने पैसे दिए हैं शाह आलम और शुजा उद्दौला को लड़ने के लिए, ठीक है। ये पैसे दे रहा है, ठीक है, शुजा उद्दौला, ठीक है। ये कौन है, अवध का है, ठीक है। फिर से ये लोग तीनों क्या हो, ये लोग तीनों हार जाएगा और ये जीत जाएगा। जीतने के बाद पता है क्या होगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग बिहार स्पेशल करेंगे ना, बिहार स्पेशल क्लास, उसमें हम लोग और भी पूरा इम्पैक्ट बताएंगे कि बिहार में क्या इम्पैक्ट हुआ। लाइक द एक्चुअल बक्सर जो है, बक्सर इज अ
टाउन, बक्सर इज अ टाउन ऑफ बिहार, ठीक है, अभी तो अच्छा सा टाउन बन गया है। तो वो बिहार का बहुत ही बुरा असर होता है, इवन लाइक 1764 के बाद फिर इवन कुछ टाइम के लिए डुअल डायआर्की भी आता है, डुअल टैक्सेशन भी आता है, तो मतलब ये सब प्रॉब्लम्स है, फिर फमाइन भी आते हैं, तो मतलब वो सब हम लोग बिहार स्पेशल क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से इनको क्या मिल रहा है, इनको फायदा क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल रहा है बंगाल में, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स मिल रहा है, बेसिकली दीवानी मिल रहा है इनको, बिहार का दीवानी मिल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी उनके हाथ में है, वो जो अवध के रूलर्स हैं उनके असाद अली खान के हाथ में है, लेकिन मतलब जब शुजा-उद-दौला जो है उस टाइम अवध का नवाब, उसके हाथ में है रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्शन करने का राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और इवन ट्रेड में भी बहुत सारा मोनोपोली, मतलब ट्रेड में भी मोनोपोली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सीधे आ जाते हैं हम लोग 1803 पे। 1803 पे क्या हो जाएगा, दिल्ली पे भी ब्रिटिशर आ जाएंगे और शाह आलम टू को क्या बना देंगे, पेंशनर बना देंगे। शाह आलम टू को बोलेंगे, मतलब एक गोल्डन गोल्डन हैंडशेक टाइप का स्कीम कुछ कह लीजिए, एक पैसे वैसे देके इनको भेज देंगे कहाँ कि चले जाओ भाई, तुम लंदन चले जाओ या फिर एंजॉय करो, तुमको पेंशन देंगे, आराम से खुश रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 1803 में ये इसको क्या बना दिया, पेंशनर बना दिया। बेसिकली काइंड 1803 में देखा जाए तो मतलब अब खत्म हो गया है, अब कुछ ज्यादा रहा नहीं है मुगल एम्पायर, ठीक है। अब तो बेसिकली लोग पेंशनर है, ये लोग रूलर थोड़ी ही रह गए, ठीक है। लेकिन तब भी नाम के लिए अभी भी लोग कर लेते हैं। तो अकबर टू जो है वो है 1806 से लेकर 1837 तक, ठीक है, जो अकबर टू है। और ये क्या करेगा ना, ये अपने लाइफ में बस एक इंपॉर्टेंट काम करेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये राम मोहन रॉय को, राम मोहन रॉय जो कि आपको पता ही है सोशल रिफॉर्मर है, बंगाल इंटेलिजेंसिया के पार्ट हैं, एंड बहुत कुछ कर रहे हैं ये, इवन सती के लिए कर रहे हैं, मतलब ही वॉज अ वेरी फेमस। हम लोग मॉडर्न मतलब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो उसमें तो हम लोग पूरा केस स्टडी करेंगे राम मोहन रॉय के ऊपर, ठीक है। तो इनको राजा का टाइटल देता है ये, ठीक है, अकबर टू जो है ये राजा का टाइटल दे रहा है इनको, ठीक है। किस साल दे रहा है, 1830 में दे रहा है, ठीक है। तो राम मोहन रॉय को ही राजा का टाइटल दे रहा है 1830 में, ठीक है। उसके बाद फिर एक रूलर आ रहा है आपका 1837 में, 1837 में रूलर आ रहा है बहादुर शाह टू, ठीक है। बहादुर शाह वन तुम लोग को पता है कब आया था, बहादुर शाह 1707 में आया था, तो ये बहादुर शाह टू है, ठीक है। और यही है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये जो बहादुर शाह जफर हैं, ये लास्ट रूलर हो जाएंगे। इनका जो टाइम है ना 1837 से लेकर 1857, इसको कहा जाता है उर्दू का गोल्डन टाइम, जो उर्दू लैंग्वेज है उसका गोल्डन टाइम है। जो गालिब हैं दिल्ली में, जो गालिब होते हैं वो भी इसी टाइम पे फेमस होते हैं, 1850s के टाइम पे ही फेमस होते हैं गालिब। और बहुत कुछ उर्दू में बहुत सारे काम होते हैं, इवन जो बहादुर शाह जफर है ना, उनका जो पेन नेम है, मतलब वो जो भी पोएम्स लिख रहे हैं उर्दू में, उसमें जफर जफर के नाम से फेमस है, जफर वाहिद, ये सब बहुत पॉपुलर होते हैं उस टाइम पे ये सब पेन नेम्स, ठीक है। और इवन इनके टाइम पे और भी एक क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो 1857 रिवोल्ट, बेसिकली बहादुर शाह जफर को बोल दिया गया कि आप लीडर हो, मतलब ये बेचारे बूढ़े से हैं, कवि आदमी हैं, लेकिन अब मतलब कोई लीडर चाहिए था ना हम लोगों को। मेरठ में तो ट्रूप्स मतलब सारे निकल गए मेरठ से, लेकिन अब उनको एक लीडर चाहिए, तो बेसिकली इनको बना दिया गया था जबरदस्ती का लीडर, ठीक है, बहादुर शाह जफर को। तो 1857 में लीडर थे ये, और इनका जो आर्मी है, मतलब इनका जो सेनापति है, चीफ कमांडर, वो है बख्त खान, वो है बख्त खान, ठीक है। सब 1857 में हम लोग देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे मतलब मार्शलिंग ऑफ ट्रूप्स होता है, और कैसे कैसे मतलब थोड़ा इनएफिशिएंट रहते हैं एज अ मतलब रेबेलियन ही वाज एन इनएफिशिएंट लीडर, ठीक है, इनएफिशिएंट लीडर ऑफ द रेबल ग्रुप्स, बट तब भी ठीक है। फिर फाइनली ही गॉट अरेस्टेड
इन आफ्टर आफ्टर 1857, और रंगून भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, और फाइनली 1862 में इनकी डेथ हो जाती है एंड मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें रही हमारी मुगल एम्पायर की। ठीक है, इतनी बातें रहती है हमारी मुगल एम्पायर की। तो हम लोग और देखेंगे, और हम लोग स्टडी करेंगे। आज संडे है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रखते। हम लोग कल मंडे को, कल फिर 10:30 में हम लोग कनेक्ट करेंगे एट नॉर्मल टाइम। आज संडे था, इवन आज इंडिया पाकिस्तान मैच भी है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज नहीं क्लास रहेगा 10:30 वाला। कल वी विल कनेक्ट एट 10:30 एट रेगुलर टाइमिंग, एंड देन वी विल सी द अदर एम्पायर्स कि इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, कि जो साउथ है, मान लीजिए कि इंडिया है आपका, तो इंडिया है ठीक है, ठीक है, मतलब जो भी है, ऐसे तो इंडिया है। ठीक है, तो अब इंडिया में क्या है कि आपका, हमने तो देखा कि हम लोग ये वाला एरिया पूरा देखा। यहाँ पर मुगल के बारे में हमने देखने की कोशिश किया। इस एरिया में अवध है। अवध में कौन प्रोमिनेंट है? सादत अली खान है। फिर बंगाल में भी हमने देखने की कोशिश किया, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर लोग कैसे इधर से ही पहले जीतते हैं प्लासी, जो कि बंगाल और बिहार बॉर्डर पे है, फिर जीतते हैं बक्सर, जो कि बिहार यूपी बॉर्डर पे है, और फिर 1803 तक दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में इसको, जो हमारा जो ये जो रूलर है शाह आलम, अ, उसको बना दे रहे हैं, ये शाह आलम टू को बना दे रहे हैं पेंशनर। ठीक है, फिर मराठास जो है वो तो इस तरफ प्रोमिनेंट है, तो मराठास हम लोग करेंगे सबसे पहले, तो मराठास करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कुछ और भी रूलर्स रहे हैं, जैसे कि मालवा में रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बहुत फेमस डायनेस्टी रहा था मुगल के टाइम पे, अर्ली मुगल के टाइम पे, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, वो करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे चोला फिर से रीमर्जेंस हुआ है चोलास का। मिडिएवल में चोलास का रीमर्जेंस हुआ है, एंशियंट में हमने कवर किया था ना चोलास। चोलास करना है हम लोगों को, मराठास करना है, विजयनगर एम्पायर करना है, फिर ये सब का भी अवध एम्पायर करना है, और बंगाल में क्या हो रहा है वो करना है। और यही विजयनगर एम्पायर जब खत्म हो रहा है ना, तो फिर बाहमनी किंगडम एक है। फिर इसी एरिया में आपका पूरा हैदराबाद भी आ रहा है। ठीक है, चोला थोड़ा और नीचे है, चोला थोड़ा सा और नीचे है, तो फिर ये हैदराबाद का प्रोविंस आ जा रहा है। तो हम लोग ये सब करेंगे। ठीक है, और तो प्लान करते हैं हम लोग, कल वी विल टेक दिस फॉरवर्ड। मिडिएवल में और 2 क्लास लूंगा। ठीक है, और फिर मिडिएवल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड मॉडर्न हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे। मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड मॉडर्न के लिए बस एक बुक आप लोग फॉलो कीजिए, स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छी बुक है, पॉइंट वाइज भी दिया हुआ है, और बहुत ही थोड़ी लेंदी बुक है, 800 पेजेस की बुक है, बट वर्थ है। ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो, एंड until then, bye, have a nice Sunday, and take care everyone.